My channel. Hello everyone, welcome to my channel. Here I am with SOF International Mathematical Olympiad for class 9. You have to attempt total 50 questions in an hour and you will have total 4 section: logical reasoning, mathematical reasoning, everyday mathematics and achiever section. In section number 1, लॉजिकल रीजनिंग, यू हैव टू अटेम्प्ट वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग. सेक्शन 2 में आपका सिलेबस होगा नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन इन 1 और 2 वेरिएबल, यूक्लिड ज्योमेट्री, लाइंस एंड एंगल, ट्रायंगल्स. Syllabus will be related to your geometry, linear geometry, and in section 3 and 4 you will have mathematical reasoning and syllable as per question section number 2. First section is logical reasoning section. Pointing to a woman in a photograph, a man says, "She is the grandmother of the son of my daughter-in-law's mother-in-law. How is the woman related to the man?" Man is pointing a woman in photograph and saying that she is the grandmother of the son of my daughter-in-law's mother-in-law. How is the woman related to the man? She is the grandmother of the son of my daughter-in-law's mother-in-law. His daughter-in-law's mother-in-law will be his wife, and his wife's son will be his own son, and his grandmother means he is talking about his own mother, mother-in-law, sister or wife. He is talking about his mother. So the answer will be मदर. तो यहाँ पे मदर पे क्लिक करेंगे. Then which of the following Venn diagram represent the relationship among state, country and village? You are provided here 4 Venn diagrams and you have to say कि which diagram is showing the state, country, village relationship. Here 4 pictures. So we know that in a country there is a state and in a state there are villages. So this diagram represents best about the relationship. Find the odd one out. A 18:108, B 42 is to 132, 22 is 112, 26 156. It is the multiple of 6, it is the multiple of 6, it is a multiple of, but this is not a multiple of 6, that 26 ko if we multiply by 6 the answer is not 156. Rather in this here each term is a multiple of 6. So this one is the odd one out. You will have answer number D. You can check this. नेक्स्ट सेक्शन इज मैथमेटिकल रीजनिंग. मैथमेटिकल रीजनिंग में हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है. दैट इज सिंप्लीफाई 2/√5 + 3√3 + 1/3√+ 1/2 - 3√5/2. So whenever there is the root in the denominator, you have to rationalize it first. So we will rationalize it term by term. First of all, I will rationalize 2/√5 + √3. तो इसको जब रैशनलाइज करेंगे तो ये हम ऐसे कुछ रैशनलाइज करेंगे. नीचे a + b, a - b विल बी a² - b². तो जो नीचे आ जाएगा बेटा आपका आ जाएगा √5 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर. जो जब हम रूट का स्क्वायर करते हैं तो वो उड़ जाता है. तो ये 5 - 3 और साथ में ये आपका बच जाएगा. तो 5 - 3 कितना होता है? 5 - 3 होता है 2. तो यहाँ पर आपका 2 आ गया. तो आपके पास ये टर्म जो है वो बच गई. ठीक है. तो फर्स्ट टर्म का आंसर जो है इसका आंसर आ गया आपका √5 - √3. अब प्लस 1/, अब हम अगली टर्म है 1/√3 + 1/√2 को रैशनलाइज करेंगे. तो इसको हम इसके ऑपोजिट टर्म के साथ जब रैशनलाइज करेंगे तो वी विल गेट a² a + b a - b. इट विल बी what it will be a² - b². तो इट इज़ a - b. तो जो टर्म हमने रैशनलाइज की थी वही हमारे पास ऊपर वो है लेफ्ट हो जाएगी. नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट टर्म इज 3
√5 प्लस √2। तो इसको जब रैशनलाइज करेंगे तो √5 माइनस √2, √5 माइनस √2, तो हमारे पास जो है बेटा 5 प्लस 2, 5 माइनस 2, ये हमारे पास a² प्लस माइनस b² का बनेगा, तो वो बन जाएगा 5 माइनस 2, इट विल बी 3, 3 के साथ 3 जो है वो कट हो जाएगा और आपके पास सिर्फ ये टर्म बचेगी। अब ये टर्म को मैं यहाँ पे माइनस का साइन है, तो ये टर्म्स जो हैं आपकी कुछ ऐसे हो जाएंगी। तो ये इसके साथ कट गई, ये इसके साथ कट गई और ये इसके साथ कट गई, तो आपका आंसर जो बचा वो 0 आ रहा है। मीन्स हमारे 4 ऑप्शन है हमारे पास, 3, 2, 4, 0, तो वी आर लेफ्ट विथ वी आर लेफ्ट विथ 0, तो आंसर विल बी 0। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आ गया होगा कि आपको जब भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट होते हैं आपको उसको रैशनलाइज करना पड़ता है। देन वी हैव 2 मेटालिक राइट circular cone having the height 4.1 and 4.3 respectively, and radii of their bases is 2.1 each, have melted together and they are recast into a sphere. Find the diameter of the sphere. हमारे पास 2 कोन हैं, ठीक है। अब उन कोन्स को हमने क्या किया, कोन को हमने करना है मेल्ट और उसको प्लस करके दोनों को रिकास्ट कर देना है सफ़ियर में, और हमें सफ़ियर का डायामीटर निकालना है। तो हमें पता है कि जो कोन होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई r1² h1, और एक दूसरा है 1/3 पाई r1² r2² h2। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो वी विल गेट अ सफ़ियर। सफ़ियर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³। तो हमें ये r³ निकालना, ये दोनों वॉल्यूम आपस में बराबर हैं। तो जस्ट आपको कुछ नहीं करना, आपको इनकी वैल्यूज़ को पुट करके आपको डायामीटर निकालना। मीन्स जो भी रेडियस की वैल्यू आएगी उसको डबल कर देंगे तो आपके पास जो है वो डायामीटर आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो डायामीटर आ जाएगा उसकी वैल्यू जो है इक्वेशन में पुट करने के बाद, रफ साइड पे सॉल्व करने के बाद आपके पास डायामीटर की वैल्यू 4.2 ही आएगी। 4.1 और 4.3 के बीच में 4.2। देन वी हैव 2 डाइस आर टॉस, द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर इज अ प्राइम नंबर। अब हमारे पास 2 डाइस होते हैं, तो हमने उनको जब टॉस करना है तो 6 एक पे आ रही हैं और 6 एक पे आ रही हैं, तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो मेरी 36 आएगी कि 36 चांसेस में से क्या चांस है कि मेरे पास प्राइम नंबर्स आने वाले हैं। पहले नंबर पे प्राइम नंबर क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, 11 एंड 13। तो ये केसेस मैं देख लूँगी कि मेरे पास दोनों डाइसेस पे टोटल जैसे 1 है तो जो 1 आता है, 1 तो नहीं आएगा ना, क्योंकि 1 ये वाला केस तो नहीं बनेगा, ठीक है। 1 वाला केस नहीं बनेगा क्योंकि या तो 1 1 आएगा, तो 2 इज़ अ प्राइम नंबर ऑल्सो, क्योंकि 2 सिर्फ अपने टेबल पे आता है। तो एक तो आपका केस आ गया 1 1 आए दोनों पे। जब ये 3 वाला है तो इसके लिए क्या आएगा, 2 1 1 2। फिर है 5 2 3 3 2 4 1 1 4, ठीक है, 1 4। तो ये कितने केस बन गए, 1 2 3 4 5 6 7, इन दोनों के 7 केसेस बनते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से मैं इन दोनों के केसेस जब निकालूंगी तो टोटल 8 केसेस आएंगे। तो मेरे पास टोटल 15 ऐसे केसेस हैं, मैं निकाल के देखूंगी, टोटल मेरे पास 15 ऐसे केसेस हैं जब प्राइम नंबर आता है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी जब हम निकालते हैं तो वो फेवरेबल केसेस ओवर टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो 15/36 जब मैं इसकी कटिंग करूंगी मेरे पास 5/12 इसका आंसर आ जाएगा, ये वाला। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। 1/3 of the boys 1/3 of the boys and 1/2 of the girls of a college participated in a social work project. If the number of students who participated is 300, out of which 100 are boys, what is the number of student in that college? तो ये हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए कि एक प्रोजेक्ट है, उसमें जो बॉयज़ हैं उनमें 1/3 बॉय, कॉलेज के 1/3 बॉयज़ ने और 1/2 ऑफ द गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया। मीन्स अगर मैं टोटल बॉयज़ मान लेती हूँ मेरे पास N1 है,
तो 1/3 बॉयज़ ने पार्टिसिपेट किया है और 1/2 ऑफ द गर्ल्स ने पार्टिसिपेट। अगर टोटल गर्ल्स मेरी हाफ है, मतलब टोटल गर्ल्स मेरी N2 हैं, तो उनका हाफ ने पार्टिसिपेट किया प्रोजेक्ट में, और जो टोटल बच्चे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है वो है 300। ठीक है, अब हमें ये दिया हुआ है कि इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इज़ 300 आउट ऑफ विच 100 आर बॉयज़। मीन्स हमें ये दिया हुआ है कि ये वाला जो पोर्शन है ये कितना है बच्चे, ये 100 है। दैट मीन्स जो N1/3 है वो 100 है। मीन्स जो N1 का आंसर है वो 300 है। तो मैं ये यहाँ पे फिल कर दूँगी। ठीक है, मतलब ये 100 प्लस N2/2 इज इक्वल टू 300। अब ये जब इस तरफ जाएगा यहाँ पे 200 आ जाएगा और N2 का आंसर आ जाएगा 400। गर्ल्स आ गई 400 और बॉयज़ है 300, तो टोटल इनका कितना आ गया 700 विल बी द आंसर। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी बच्चे क्लियर नहीं है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में दिक्कत है। आई विल एक्सप्लेन इट बेटर इन अ बेटर वे, राइट। आई हैव ट्राइड टू द मोस्ट बेस्ट लेवल टू एक्सप्लेन इट टू यू। ओके, you have to apply your logics also to get good marks in the exam, right? Next question is question number 8. These are the sample questions which have been issued by the SOF Foundation. So on the same track you can attempt and you can get good marks. If from anywhere in the country you are listening to me, please subscribe my channel for more such updates, more such videos, and please press your bell icon to get the more updates regarding the video on Olympiad and all other and any other type of competition papers. Question number 8 is the population of a town is increased from 1,75,000 to 2,62,500 in a decade. The average percentage increase of population per year, ये हमें निकालना है। तो हमें एक टाउन की पॉपुलेशन बताई गई है कि वो 1,75,000 से इंक्रीज़ होके 2,62,500 हो गई है। तो हमें परसेंट पर 10 ईयर में, ये पर 10 ईयर का डाटा है, हमें हर साल का इंक्रीज़ निकालना है। तो जब भी आपको टोटल इंक्रीज़ निकालना होता है तो क्या करना होता है, आपको दोनों को माइनस करके जो इनका परसेंटेज ओवर ओरिजिनल निकालना है। ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू है, इसमें से हम 2,62,500 माइनस 1,75,000 करेंगे। ठीक है, तो वो आपका 8,500 इंटू 100 बाई 10 ईयर कर देंगे, तो आपका आंसर जो है वो 5% आएगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कट कटा के आंसर जो है, मैं आपको हिंट दे रही हूँ, आपको इसको सॉल्व करना है बाय योर हैंड फॉर मोर प्रैक्टिस, बिकॉज एग्ज़ाम में तो बेटा आपको खुद ही करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस करनी है। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे बाय हैंड वो उतना ही अच्छा होगा, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। ये अचीवर सेक्शंस हैं जिसमें थोड़ा हायर ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चन आते हैं और इनके मार्क्स भी जो है वो ज़्यादा रहते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। एनी पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म। जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो उसका बेटा क्या कोऑर्डिनेट ज़ीरो रहता है, उसका वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो रहता है और उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा आपको आंसर में आता है। द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज, एब्सिसा, ये एब्सिसा होता है, ये क्या होता है ऑर्डिनेट। तो हमें वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट मिलता है तो वो ऐसे होता है, तो उसका एब्सिसा क्या होता है 0। तो यहाँ पर 2 पॉइंट तो मेरे ये आ गए। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4, 5 फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस से ये 4, 5 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 आएगा, ठीक है ना, मतलब कि वो ये वाला डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये आपका आंसर ये आ गया। द पॉइंट वेयर टू कोऑर्डिनेट, ये स्किप हो गया मेरे से, द पॉइंट वेयर टू कोऑर्डिनेट मीट इज ओरिजिन, और द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, 7 फ्रॉम वाई एक्सिस इज 3। तो ये आपका बी ऑप्शन जो है वो आंसर आने वाला है। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, कंसिडर द फॉलोइंग डाटा। आपको एक्स दिया हुआ और एफ दिया हुआ है। ये एफ होती है फ्रिक्वेंसी और एक्स होता है कि क्या वैल्यू है। तो आपने कॉलम्स को मैच करना है, मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है। मोड होता है जो सबसे ज़्यादा, मैं आपको बता रही हूँ फ्रीक्वेंट टिक निकालने का। मोड क्या होता है, मोड होता है जो सबसे ज़्यादा वैल्यू आई होती है। तो आप देखो यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस है,
ये कितनी बार आया, ये 1 बार है, ये 3 बार है, ये 4 बार है, ये 8 बार है, ये 10 बार है, मतलब ये 10 बार आया तो ये इसका मॉड होगा। अब ये मॉड है, मतलब ये p जो है 16 है, तो 3 के लिए p कहाँ पर है, 3 के लिए p यहाँ पर है, ठीक है। अब ये 2 ऑप्शन है, अब मुझे मीडियन भी पता करना है। मीडियन होता है कि ये मेरी मान लो ये 3 टर्म इस तरफ होगी, ये 3 टर्म इस तरफ होगी, ये मिड ऑफ द डाटा है, तो ये 15 मेरा मीडियन है। तो 15 मेरा मीडियन कौन सी वैल्यू के लिए आ रहा है, Q15, ये मेरा 2 आ रहा है ये, ठीक है। तो अब बचा 1 आर के लिए, तो फिर 1 आर ही होगा, मीन उसका वही होगा, तो ये मेरी ऑप्शन होगी। बाकी अगर आपने मीन निकालना है तो आपको मीन का एक फॉर्मूला पता है, दैट इज सिग्मा XI FI ओवर सिग्मा FI। मीन्स आपको पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है सबको, फिर सबको प्लस करके उसको मीन फ्रीक्वेंसी के साथ आपने ऐड करना है और डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर हो जाएगा 15.2। और अगर आपने फ्रीक्वेंट लगाना आंसर तो आपका फ्रीक्वेंट आंसर जो है ये फर्स्ट आने वाला है, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको ये जो मेरा फ्रीक्वेंट सा आपको हिंट देना थोड़ा सा आपको हेल्पफुल रहेगा। प्लीज़ गो टू माई चैनल for such more such videos and please subscribe my channel, please. Thank you. Have a wonderful attempt in your exam. All the best.